like to invite Mr. Akhilesh Rathi, immediate past president, Indore Management Association, Managing Director, Savit Universal Limited, and Mr. Ashok Jain, Chairman and Managing Director, Arihant Capital, to kindly escort our esteemed guest, a distinguished businessman and investor, Mr. Madhusudan Kela, founder, MK Ventures, to the stage. As a token of our gratitude, I request Mr. Hitesh Bindal, Director, Swastik Coal, and Mr. Dinesh Bhatt, Complex Head, SRF Limited, to present the planter in memento to Mr. Kela. Thank you. Before we hear from our honored guest, let's take a moment to learn more about his incredible journey and contributions. I now request the AV team to please play the introduction video of Mr. Madhusudan Kela. Some people check the stock market, but Mr. Madhusudan Kela makes the stock market worth checking. While most of us panic over market swings, he's the guy who stays calm, spots the trends, and somehow always knows the right move. He's seen it all: booms, busts, bulls, bears, and through it all, he's been one step ahead, turning smart investments into big wins. And when he's not busy making markets work, he's mentoring startups, sharing wisdom, and proving that investing isn't just about numbers. It's about timing, instinct, and maybe a little luck, but mostly instinct. So let's welcome the man who makes sense of the chaos and stays ahead of the game, Mr. Madhusudan Kela. Now, ladies and gentlemen, the moment we've been waiting for. I request Mr. Akhilesh Rathi and Mr. Ashok Jain to lead this conversation ahead. Welcome, Madhu Bhaiya, as I always call him, because I cannot address him as Mr. Kela, because he has been Madhu Bhaiya for me for all my life. So, welcome to IMA, Madhu Bhaiya. आपने बहुत छोटे शहर कुरुद से, छोटे गांव से निकल के पूरे देश में और विदेश में अपना इतना बड़ा नाम बनाया, तो कैसा महसूस करते हैं आप? कैसी जर्नी रही? कैसे आपने इन्वेस्टमेंट अप्रोच को शेप किया? थोड़ा इस बारे में सबको बताइए प्लीज़. Sure. Thank you, Akhilesh bhai. I feel little overwhelmed being here, so thank you for the honor. And I thoroughly enjoyed Mr. Godre's session. And what an inspiring personality he is, full of life. So, doing a session immediately after him, I am a bit nervous, but we shall get over this. So, Akhilesh bhai, you know, as you said, मैं एक बहुत छोटे से गांव से आता हूँ, छत्तीसगढ़. मेरे पिताजी एक फार्मर हैं. अब
fortunately, by the grace of God, he is still around. He is 94-year-old. बहुत छोटा सा गांव था, हमारी परवरिश गांव में हुई. सरकारी स्कूल में हम पढ़ने गए एंड क्लास 11 तक के मैंने गांव में ही पढ़ाई करी. और उसके बाद वहाँ से एक और छोटा सा शहर था, तो कॉलेज वहाँ से किया. लोग बोलते हैं बम्बई सपने वालों की नगरी है, तो मेरा भी एक सपना था, तो बम्बई ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया उस सपने के साथ. एंड आई वुड से मैं बहुत ही फॉर्चुनेट था कि ऑब्वियसली वर्नाकुलर मीडियम, हिंदी मीडियम होने की वजह से बहुत, और छोटे से गांव से आने की वजह से इनिशियल ईयर्स बहुत स्ट्रगल के थे. पर मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि जब मैं हॉस्टल में रहता था अखिलेश भाई, तो ही मेरा एक स्टॉक मार्केट से एक अजीब तरीके का परिचय हुआ. बिना टाइम ज़्यादा ले हुए मैं बताता हूँ कि कैसे मेरा परिचय हुआ. तो हमारे हॉस्टल में कोई आदमी, उस समय हर्षद मेहता का दौर चल रहा था, और हमारे हॉस्टल में कोई आदमी फ़ोन लगाया और उसने बोला, मैं फ़ोन लगा के कि मैंने 5,000 कमा लिया. मैं बोला यार हमारे पिताजी पूरे सालों मेहनत करते हैं तो भी इतना पैसा नहीं आता है. इस आदमी ने क्या किया कि एक फ़ोन लगाया और 5,000 कमा लिया. और हमारे गांव में उस समय फ़ोन वगैरह होता नहीं था, तो हमारा ज़्यादा परिचय भी नहीं था फ़ोन वगैरह से. तो मैं दूसरे दिन वापस गया तो दो लोगों ने और बोला मैं 2,000 कमा लिया, किसी ने बोला मैं 1,000 रुपये कमा लिया. अखिलेश भाई मेरे को 2-3 दिन रात को नींद नहीं आई. फिर मैंने उस आदमी को जाके पूछा, भाई ये क्या करते हो? तो बोला ये स्टॉक मार्केट है. एंड आई विल टेल यू दैट डे एंड टुडे, by the grace of God, I have never thought of doing anything else in my life. It was love at first sight, and that love has only grown over the years. And because we come from very humble background, you know, the investment principles are not learned from any books. और अभी मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया और अपने प्रिंसिपल खुद बनाए, बीइंग हम्बल, बीइंग फ्लेक्सिबल. बिकॉज मार्केट जैसे लगता है ना वैसा है नहीं. क्योंकि अगर ये इतना सिंपल होता कि कोई भी आदमी ईपीएस और पी प्रोजेक्ट कर देवे तो सारे दुनिया के अकाउंटेंट सबसे ज़्यादा रिच होते हैं, राइट. सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड टू मेक मनी हियर, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव आवर ओन अप्रोच. एंड लाइफ का पर्पस ही यही है दैट आई वॉन्ट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ मधु केला एवरी डे. आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक एनी वन एल्स. It is not out of any arrogance. Obviously, I inspire, I get a lot of learning from everyone around, but I don't want to copy anyone. मतलब ओरिजिनल स्टाइल, खुद की सोच, खुद की समझ, खुद के डेवलपमेंट से मेंटेन करना चाहते हैं. आई थिंक दैट्स एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वांट टू इम्बाइब व्हाट अदर्स आर डूइंग और व्हाट अदर स्टाइल इज. 30 साल की इन्वेस्टमेंट जर्नी हो गई मधु भैया आपकी. 30 साल के अंदर क्या आपको लगता है कि 2, 3, 4 पॉइंट ऐसे मेजर रहे हैं जो कि उस वक्त भी सही थे और आज भी सही हैं, समय के हिसाब से उनमें कोई चेंज नहीं आया फंडामेंटल्स में? So आप इन्वेस्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, इन्वेस्ट. तो सी बेसिकली इन्वेस्टिंग फाइनली क्या है, जो चेंज नहीं होता है वो ग्रीड एंड फियर, जो चेंज नहीं होता है वो एसिमेट्रिक रिस्क और रिवार्ड. आप कोई भी इन्वेस्टिंग की बात करो, और जो चेंज नहीं होता है वो आपका एक इंट्यूटिव सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इज. तो मैं इन्वेस्टमेंट को कैसे गिनता हूँ अखिलेश भाई, दैट एक तरफ ये साइंस है, दूसरी तरफ इसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स है, बट फाइनली ये एक आर्ट है. हाउ डू यू ब्लेंड ऑल ऑफ दिस टुगेदर टू टेक ए डिसीजन. मुझे लगता है कोई एआई आ जाए, किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी आ जाए, वो जो आर्ट है ना विच रियली डिस्टिंग्विशेस एन इन्वेस्टर फ्रॉम वन टू अनदर, एंड हाउ डू यू ब्लेंड all the mathematics and the science into the art, that is what investing is all about. आई थिंक वेरी वेरी वैल्यूबल इंसाइट कि साइंस टेक्नोलॉजी सब अपनी जगह है, बट इवेंचुअली उसके बाद जो है ये तो मशीन कर सकती है,
बट द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये आपके अंदर से आती है. दैट्स ग्रेट. मधु भाई, हम लोग सब उस एरा में हैं जब हमको लग रहा है कि इंडिया $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, विकसित भारत, तो इस सब के ऊपर आपका क्या टेक है, क्या लगता है आपको? अखिलेश भाई, इंडिया का प्रोग्रेस हुआ है और मैं पहले तो बोलूँगा आगे जो होगा होगा. मेरे देखते देखते जब मैं 1991 में आया मार्केट में, उस समय इंडिया की जीडीपी 200 बिलियन थी और आज ये 4 ट्रिलियन है. तो लास्ट 33-34 ईयर्स में इतना 20-22 टाइम्स प्रोग्रेस हुआ है. और उस समय रुपए का डॉलर 30 हुआ करता था, 25-27 हुआ करता था. आज हम 88 पे बैठे हैं. तो रुपी टर्म्स में तो और भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, मल्टीपल प्रोग्रेस हुई है. तो मुझे नहीं और इस दौरान हमने सब तरीके की अनसर्टिनिटी वर्ल्ड में और इंडिया में देख ली. फ्रेजाइल गवर्नमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर जो एक साल आए, कोलिशन गवर्नमेंट्स रही, 1998 का ईरान इराक का वॉर हुआ, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, इंडिया में पॉलिसी पैरालिसिस हो गई फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन 2009 एंड 2013, डिमोनेटाइजेशन हो गया. मतलब एवरी सेकंड थर्ड ईयर कुछ ना कुछ हुआ है यहाँ पे. पर उसके बाद भी इंडिया का एक रेजिलियंस है, वो प्रोग्रेस हुई है. तो मुझे कोई रीज़न नहीं दिखता है कि आने वाला साल, आने वाले अगले 30 साल पिछले 30 साल से अच्छे नहीं होंगे. इसका मुझे कोई कारण नहीं लगता है. और अगर हम ज्ञानी लोगों की बात करें, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो या मॉर्गन स्टैनली हो या अपने स्टालवर्ड्स, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, गौतम अडानी हो, ये सब लोग तो बोल रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी बाय 2047 विल बी मोर लाइक $35-40 ट्रिलियन. इंडियन गवर्नमेंट ने डेवोस में एक प्रेजेंटेशन किया जिसमें ये इंस्पिरेशन था कि 2047 तक के वी विल बी $35 ट्रिलियन जीडीपी. इसका मतलब क्या हुआ कि आज अगर हम 4 ट्रिलियन पे हैं और बाय 2047 वी आर एस्पायरिंग कि हम 35 ट्रिलियन पे होंगे, विच मीन्स 8-fold मोर ग्रोथ फ्रॉम हियर. इन अ लेमन लैंग्वेज इट मीन्स कि जो पिछले 5000 साल में हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा अगले 25 साल में होने वाला है. अब ये नंबर का मेरे लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं है कि हम 28 होंगे कि 35 होंगे कि 40 होंगे. डायरेक्शन इंडिया का पॉजिटिव है और मोमेंटम बहुत पॉजिटिव है, वो इम्पोर्टेंट है. मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों अच्छी हैं. स्पीड कितनी ज़्यादा होगी ये समय बताएगा, पर डायरेक्शन डेफिनेटली सही है. मधु जी, मैं आपको पिछले 30 साल से जान रहा हूँ. मतलब यू आर वेरी ग्रेट सक्सेसफुल बिजनेसेस आपने खड़े किए हैं. तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से एक्चुअली अभी 4 साल से लोगों ने मंदी देखी नहीं. मार्केट वाज इन ए बुल फैश आफ्टर कोविड. और अभी पिछले 6 महीने से या 4 महीने से या 5 महीने से मार्केट में एकदम से मंदी आ गई. लोगों ने वो मंदी देखी नहीं. तो मेरा आपसे ये पूछना था, समझना था, और सभी लोगों का प्रश्न है कि ये जो अभी मंदी का जो फेज चल रहा है ये प्रोलॉन्ग्ड है, करेक्शन है, या आगे और चलेगा, या बाजार मार्केट जो है बॉटम आउट हो चुका है, या हो रहा है, या और समय लगेगा? अशोक भाई साहब, आप भी आपकी भी बड़ी अच्छी जर्नी रही है स्टॉक मार्केट में. अपना काफ़ी मिलना जुलना रहा है. सो मैं आपको ये बोलूँगा कि देखिए, लॉन्ग टर्म रिटर्न ना, एक एवरेज रिटर्न ही आपको स्टॉक मार्केट से मिल सकता है. जैसे लास्ट 25 साल 30 साल में 15% करीब रिटर्न स्टॉक मार्केट से आया है, बिकॉज आपके फिक्स्ड इनकम का रिटर्न 7-8% है और इक्विटी का एक प्रीमियम होता है. तो लास्ट 3 साल में लोगों ने 25, 30, 35, 40% तक की कंपाउंडिंग की है. और कुछ लोग, मतलब आई वुड से मेरा खुद का पोर्टफोलियो मल्टीफोल्ड बढ़ा होगा इन लास्ट 4 years फ्रॉम कोविड लॉस, राइट. तो मैं क्या बोलना चाहूँगा कि ये एक्सपेक्टेड ही था. अगर लोग ये सोच रहे थे कि जो तेजी लास्ट 3-4 साल चली वो परपेचुअली ऐसे ही चलती रहेगी, तो इन सिंपल लेमैन लैंग्वेज में तो फिर तो बिजनेसमैन बेवकूफ़ है ना, जो धंधा लगा रहा है
इतनी बड़ी रिस्क ले रहा है, इतने लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है और वो 18-20% आरओई नहीं कमा पा रहा है, और स्टॉक मार्केट वाले आके 40-40% उनका ही शेयर लेके कमा रहे हैं, राइट? तो ये तो सस्टेनेबल होना ही नहीं था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कभी ना कभी तो ये करेक्शन आना ही था। एज फार एज ये करेंट फेज है, आई एम वेरी क्लियर कि ये डेफिनेटली इन अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड इट इज़ अ करेक्शन, एंड ये करेक्शन एक इन्वेस्टर के लिए तो आई थिंक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होता है, बिकॉज हम तो खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं तो टीवी में जाके बोल के आया 1 साल पहले कि आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड आइडियाज इन इन्वेस्ट, बिकॉज उस टाइप के वैल्यूएशन में कहाँ इन्वेस्टिंग का अपॉर्चुनिटी आता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि ये बहुत एक अच्छा टाइम अपने लिए आ रहा है। वी डोंट नो, मार्केट का बॉटम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ना टॉप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। वी डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस फेज विल लास्ट, मे बी 2 months, मे बी 4 months, बट कल ही हम लोग रिव्यू कर रहे थे कि 500 कंपनियां, 1000 करोड़ से मार्केट कैप की 500 कंपनियां कम से कम 50% से ज़्यादा घट गई है। और क्या हो गया, 2024-25 में ये कंपनियां बढ़ी थी, तो हम 2024-25 का वैल्यूएशन देख रहे थे। अब हम 25 के एंड में आ चुके हैं, तो एक तो 50% करेक्शन हो गया, और 4 महीना बाद हम 2026-27 की बात करने लग जाएंगे, तो वैल्यूएशंस एक्चुअली काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। बट द ब्यूटी क्या है अशोक भाई इसमें, कि अगर जो पहले बढ़े हुए शेयर थे, अगर हम बोलेंगे वो शेयर 100 रुपये वाला 30 हो गया और मैं वो ले लूँ और वही वापस 100 होने वाला है, तो हो सकता है वो वापस 100 नहीं होगा कभी, कोई नया शेयर चलेगा, कोई नई थीम चलेगी, कोई नया आइडियाज चलेंगे। पर मार्केट का रिटर्न मेरे हिसाब से अगले 20 साल में उतना ही एक्साइटिंग रहेगा जितना पिछले 20 साल में रहा है। आपका कहना है कि जो कंपनियां अच्छी ग्रो कर रही हैं उनके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे बिल्कुल 50% प्लस, तो उससे पैसा बनेगा आगे आने वाले समय में भी। और ये अच्छा समय है कि करेक्शन हुआ है, क्योंकि सभी लोग चिंतित थे कि मार्केट जिस तरीके से बढ़ रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है, बिल्कुल कब टूटेगा वो वेट कर ही रहे थे। जितने भी समझदार या डेप्थ वाले जो लोग थे जो समझते हैं मार्केट को, तो मेरा आपसे नेक्स्ट, लोग इंतजार कर करके थक गए और गिव अप करके उन्होंने शेयर लेना चालू कर दिया। उनको लगा पता नहीं है कब ये करेक्शन आएगा। और क्या है, देखो भाई साहब, बुल मार्केट को बढ़ते हुए देखना ना बहुत कठिनाई का काम है। अगर आपके घर में कैश है और पड़ोसी पैसा कमा रहा है और उस टेम्पटेशन में रह पाना, ये बहुत ज़्यादा कठिनाई का काम है, मैं बता रहा हूँ। बराबर। तो ये क्या है, ये बहुत कम लोग इसको कर पाते हैं। आज देखिए जैसे वॉरेन बफेट क्यों सक्सेसफुल है। आज 27% ऑफ पूरा बैक्सर हैथवे का कॉर्पस इज इन कैश। नो, अपने तो हीमोग्लोबिन अपना घट जावे, अगर इतना बड़ा बुल मार्केट होए और अपना 27% कैश हो जाए, कैश रह जावे, तो मैं पर्सनली अपना बोल सकता हूँ, आई डोंट नो अबाउट द क्राउड, मेरा तो हीमोग्लोबिन नीचे चला जाए, राइट। तो ये इमोशनली जो मैं बोल रहा था ना, ये आर्ट है, इमोशनली उसको कोप अप करना बहुत टफ है। पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा जहाँ जहाँ एक्सुबरेंस बहुत ज़्यादा है वो शेयर बेच दिए, थोड़ा लार्ज कैप में चले गए, थोड़ा जहाँ पे उस समय भी रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा लग रहा था, एब्सोल्यूट जो कंपनियाँ उस समय भी अच्छी लग रही थी वहाँ पे शिफ्ट कर दिया और थोड़ा कैश क्रिएट किया, राइट। तो मेरा आपसे यही, आपका चूँकि इतना लंबा एक्सपीरियंस है और फास्ट डिसीजन मेकिंग आपका चलता है, तो मेरा आपसे कहना है कि नेक्स्ट आने वाले 10 साल 20 साल में 10x 20x कौन से सेक्टर हो सकते हैं या कौन सी कंपनियां हो सकती है जिससे हमारे जितने भी इन्वेस्टिंग पॉपुलेशन है वो उसका आपके एक्सपीरियंस और आपके सुझाव पे बेनिफिट ले सके, फ़ायदा ले सके। अशोक भाई साहब, सॉरी मैं थोड़ा एक्सुबरेंट साउंड करूँगा, सो आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सी, मैंने कंपनियों को पिछले 20 साल में 500-500 गुना और 1000-1000 गुना होते हुए भी देखा है। एंड एज एन इन्वेस्टर, इट इज़ माई ड्रीम दैट आई वॉन्ट टू परस्यू
these kind of extraordinary opportunities. There are very few, but they are there. So I have no reason to believe that some companies will not be 50, 100 times, leave alone 10, 20 times. Some companies will not be even 50, 100 times in the next 10, 20 years, times to come. The question is that do you have the real patience, to stay invested, and do you have the real mix of science, mathematics and art to identify them, right? क्योंकि आइडेंटिफाई करना जरूरी है और स्टे इन्वेस्टेड रहना जरूरी है. एंड थर्ड पोर्शन ऑफ इन्वेस्टिंग है कि आप में वो रियल पैशन है क्या, टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर दिस कंपनीज ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट? नहीं तो कभी क्या होता है, एक इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती कहाँ पे होती है कि आपको कोई गोल्ड माइन मिल जावे, आपको गोल्ड मिल जावे और आपने अगर उसको 100 रुपये में खरीदा है और कोई दूसरा बोलता है कि मैं 100 का 1000 देने को तैयार हूँ, तो आप इमीडिएटली बोलते हो तो मेरा तो 9 गुना हो गया, अब मैं दे देता हूँ. आपको पता नहीं है गोल्ड की कीमत 80,000 है, राइट? तो ये जो मिक्स करके, तीनों को मिक्स करके, तो फाइनली जो नीलेश भाई भी सुबह बोल रहे थे, मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूँ. ये ना इंडिया में सेक्टर आइडेंटिफाई करना जरूरी है, पर विद इन द सेक्टर वो एक एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योर को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा जरूरी है. क्योंकि अगर आपने एक एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई कर लिया और उसके साथ हो लिए ना, तो फिर वो सोने में सुहागा हो जाता है, एक राइट सेक्टर और एक एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योर. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अगर आपने 30-20-25 साल पहले HDFC बैंक में इन्वेस्ट किया, या साथ में सपोजिंग आपने कोई पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट किया, बैंकिंग सेक्टर की अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए एक ही थी, राइट? पर देखो HDFC बैंक ने उस अपॉर्चुनिटी का क्या बनाया वर्सेस एक पब्लिक सेक्टर बैंक ने उस अपॉर्चुनिटी का क्या बनाया. जस्ट एज एग्जांपल बोल रहा हूँ, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक से भी अच्छा किया है, बट HDFC बैंक ने एक्सेप्शनली अच्छा किया है. तो व्हाट वाज द सीक्रेट? The secret was to identify the Aditya Puri who was behind HDFC Bank. तो अगर आपको रियल में मल्टीबैगर खोजना है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, तो सेक्टर जरूरी है, पर उससे भी ज़्यादा जरूरी है आप कौन से एंटरप्रेन्योर के ऊपर बेट कर रहे हो और आपका प्रिपरेशन कैसा है लेते समय, आपका पैशन कितना है उसको परस्यू करते समय, और आपका पेशेंस कितना है उसको होल्ड करते समय. ये तो आपने बताई खूबी एज एन इन्वेस्टर या एज अ स्ट्रैटेजिस्ट इन्वेस्टर कि हमें क्या हमारे अंदर होना चाहिए. लेकिन आप जब इन्वेस्टर बन के किसी एंटरप्रेन्योर को सिलेक्ट करते हैं और जिस पे आप बड़ा दाव लगाते हैं और लंबे समय तक लगाते हैं, आई नो फ्यू ऑफ द स्टोरीज, तो उसमें आप उस एंटरप्रेन्योर में क्या क्या देखते हैं और उसके अंदर उसके करेक्शन मोड के लिए पार्टिसिपेट करते हैं या सिर्फ लगा के दूर से बैठ के देखते हैं? अखिलेश भाई, मैं काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट विथ यू. एंड वही मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, वो एक आर्ट वाला जो पोर्शन है ना, इसको मैं मैथमेटिकली डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा कि मैं एंटरप्रेन्योर में क्या देखता हूँ, और ऑनेस्टली मैं तो जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ मैं डेफिनेटली जाके मिलता हूँ. वन ऑफ माई वे ऑफ डूइंग रिसर्च कि मैं उनके घर पे जाता हूँ. मेजॉरिटी ऑफ दी प्लेसेस जहाँ पे मैंने बड़ा बेट लिया है ना, मैं पक्का उनके घर पे जाता हूँ, एक बार खाना खाता हूँ, घर का व्यवहार देखता हूँ, उनके परिवार का व्यवहार देखता हूँ कि कितना रूट से वो लोग जुड़े हुए हैं. वो अपने को इतना देख के समझ पड़ता है मूल संस्कार कैसे हैं. एंड प्लस उनके फैमिली मेंबर से जब आप डिस्कस करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि कितना फायर, नॉट वो एक इंडिविजुअल में है, कि कितना फायर पावर वो पूरे परिवार में है, राइट? और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स आप रेफरेंस चेक करते हो, फिर टीम को मिलते हो. तो ये सब काम ऐसे नहीं है कि हमने इन्वेस्ट करने के पहले कोई आदमी के ऊपर PhD कर लेना है. हम तो एक बार एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर और उसको वैलिडेट करते हैं, फिर देखते हैं कि मार्केट भी उसको रिस्पेक्ट कर रहा है,
और हमारी थीसिस भी उसके साथ साथ चल रही है, तो वो कन्विक्शन फिर धीरे धीरे बढ़ते जाता है. एंड आई मस्ट टेल यू अखिलेश भाई, जो मेरी सबसे पहले स्टोरी थी डिवीज लैब, जो मैंने 20 साल पहले कभी आइडेंटिफाई किया था, आज अगर वो स्टॉक को सिर्फ मैंने रख दिया होता अखिलेश भाई, कुछ भी नहीं किया होता, और जब उसका डिविडेंड आया तब मैंने उसको री इन्वेस्ट कर दिया होता, तो आज उस शेयर में मेरा 1500 गुना पैसा होता था. 1500 टाइम्स. 1500 टाइम्स, मोर देन 1500 टाइम्स. तो 5 करोड़ लगा के 7,500 करोड़ कमाने का अपॉर्चुनिटी था. $1 बिलियन. ये जितने जो अभी नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, या ईवी आ रहा है, या लोगों में जो डिसरप्शन, ऑटोमेशन, ये सब हो रहा है, इससे आपको क्या लगता है एंटरप्रेन्योर्स को रेगुलर इनपुट देना पड़ता है, या एंटरप्रेन्योर्स को रेगुलर एक्सटर्नल इनपुट लेना चाहिए? दिस क्वेश्चन इज मोर फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर साइड. तो व्हाट इज योर विजन ऑन दैट? मैं बताऊं, एक रियल एंटरप्रेन्योर की खूबी क्या होती है अखिलेश भाई, जी. वो अपनी लिमिटेशन को रिकॉग्नाइज करता है. तो जब हम किसी को मिलते हैं ना, अगर वो बोलता है कि मैं तो बहुत शाना हूँ और मेरे को स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, वैल्यू क्रिएशन के बारे में सब कुछ पता है, तो वो एक हमारे लिए बड़ा निगेटिव पॉइंट है. रेड फ्लैग हो जाता है. रेड फ्लैग है, इन अ वेरी रेड फ्लैग है. पर जब हम जाके हमारी एक जर्नी शेयर करते हैं ना, जैसे मैं कोई भी एंटरप्रेन्योर को बताता हूँ कि डिवीज लैब कैसे बना, या एशियन पेंट कैसे बना, या HDFC कैसे बना, तो जो रियल में जुझारू और होशियार एंटरप्रेन्योर है ना, वो तो बहुत ही सीरियसली उस बात को सुनते हैं, और वो समझते हैं कि ये हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनके लाइफ की जर्नी में. क्योंकि हम तो सपोजिंग कोई भी एंटरप्रेन्योर कोई केमिकल बना रहा है या NBFC कंपनी चला रहा है, उसके पास ना इतना टाइम है, ना इतना पर्सपेक्टिव है, ना इतनी बड़ी टीम है. हमारा तो रिसर्च लैब है. इट इज़ नॉट डूइंग रिसर्च ऑन कंपनीज, बट रिसर्च लैब इज डूइंग रिसर्च ऑन वैल्यू क्रिएशन, व्हाट सक्सीड एंड व्हाट फेल्स. एंड मैं खुद अखिलेश भाई कम से कम 3000 छोटे या बड़े एंटरप्रेन्योर्स को मिला हूँगा पिछले 25-30 साल में, राइट. और अभी भी हर वीक कम से कम एक नए आदमी को मिलता हूँ, छोटे बड़े कोई भी आदमी को, एक नए आदमी को जरूर मिलता हूँ. तो आप समझो, वो जो 3000 लोगों को मिल के 2500 लोगों को हमने गिरते हुए देखा है, 300 लोगों को सिर्फ संभले हुए देखा है, और 100 लोगों को एक्सेप्शनली सक्सेसफुल होते हुए देखा है. तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन होता है इन द जर्नी ऑफ एनी कंपनी इन विच वी इन्वेस्ट. और उसमें से भी ऑनेस्टली 10 में से 5 लोग सुनते हैं, 3 लोग रियल में अमल करते हैं, और 5 लोग इग्नोर कर देते हैं. तो दैट इज़ वाई हमारा भी एक मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न होता है, राइट. पर द होल एस्पिरेशन और टू गोइंग फॉरवर्ड इज टू रियली more and more master this game, so that we can in my lifetime at least I can identify a few more Divi's laboratories and now hold on to them. Yeah, identify more Divi's laboratories and more importantly hold on to them. यहाँ पे बहुत से एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जिनकी कंपनियाँ अच्छी चल रही हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो उन लोगों के दिमाग में होता है कि यार हमें क्यों कैपिटल मार्केट में जाना है, वी आर अर्निंग इनफ, वी आर डेट फ्री कंपनी और लो डेट कंपनी. तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि क्या उनको विजन में मॉडिफिकेशन करना चाहिए ताकि वो एज एन एंटरप्रेन्योर? मुझे लगता है कैपिटल मार्केट जरूर जाना चाहिए, बिकॉज सी कैपिटल, और उसके 3-4 कारण हैं. ऑनेस्टली एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना अखिलेश भाई, जब पब्लिक की स्क्रूटनी के लिए आप तैयार हो, वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी अलग होती है, और वो आदमी को रियल में पुश करती है. और आजकल क्या है, जब आपकी खुद की कंपनी आप चलाते हो ना, तो घर का मामला हो जाता है. वहाँ पे उस गवर्नेंस को हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे लेके आना विल बी टफ. आप खुद की कंपनी चला रहे हो, चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, उतना अच्छा नहीं रहता. थर्ड जो मैं पॉइंट बोलूँगा कि अगर ऐसा ही सब, सपोजिंग गोदरेज ने भी यही सोच लिया होता, या टाटा ने भी यही सोच लिया होता, या बिरला ने भी यही सोच लिया होता, they would not have created the empires which they created. And lastly, जब आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी रन करते हो और एक सक्सेसफुल कंपनी रन करते हो ना अखिलेश भाई, तो जो दूसरों के लिए कमाने का मजा आता है ना, वो मजा कभी कोई प्राइवेट कंपनी वाला,
कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकता है. But after a period of time, na, the real happiness lies in spreading happiness, in making other people happy, right? Higher goal. And that is why Dhirubhai Ambani was the legendary Dhirubhai, because he would have changed millions of lives through taking Reliance public and making sure that they all benefited out of his effort. आप सोचो ना, आज एप्पल है, गूगल है, they are all public limited companies. Not only the entrepreneurs who created these companies have become rich, but they have really created millions of people who have got a lot of wealth. अब जैसे ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो में टेम्परेरी हेडविंड्स दिखती हैं, आपको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या दिखता है? मतलब इंडियन इकोनॉमी का, जैसे आपने कहा 30 ट्रिलियन, 35 ट्रिलियन डॉलर्स, बट से नेक्स्ट 4 years इफ यू सी इन अ शॉर्ट टर्म विद व्हाट how America is behaving. We have to be very agile. This is I think the way Mr. Trump is doing things, I would not say even behaving, that 100 declaration in a period of 30 days, unheard of by rule of any president. So I think we can't take him lightly, and we should not take him lightly. मुझे लगता है the fact मोदी जी जाके आए और उनको मिल के आए, that itself proves that there is a due importance which we are giving to this administration. I don't think with our administration as well, give and take होगा. मुझे लगता है कहीं कहीं पे अपने टैरिफ रियल में अनरीजनेबल है और जो सालों से है, तो वहाँ पे हमको करेक्शन करना पड़ेगा. कहीं कहीं पे उनको हमको एकोमोडेट करना होगा. एंड आई थिंक आई सी इन द नेक्स्ट 6 months चीज़ें आयरन आउट हो जाएगी. उसके बीच में बम्प आ सकता है क्या? तो पक्का आ सकता है. स्टॉक मार्केट वालों को केयरफुल रहना चाहिए और ये नहीं अज्यूम करना चाहिए कि वो बम्प नहीं आएगा. ठीक है, उनका स्टाइल क्या है, वो एक बार तो करेंगे फिर उसको करेक्ट करेंगे, और तभी आदमी भी भाग के जाता है कि यार ये हो सकता है, नहीं तो otherwise you take things for granted. He creates that fear psychosis. He creates that fear psychosis, and that is what we have seen. अब आपको पता है कि मैक्सिको के ऊपर अगर 25% ड्यूटी लग जाए तो आधी अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्चुअली बंद हो जाएगी, पर उसने जाके लगा दिया. But to bring them to to bring them to negotiating table. Right. So will he do the possibly somewhat the same thing with India? He is capable and he can do. So we should not take it lightly as stock market investors. नहीं कुछ नहीं होगा वैसा नहीं है. But eventually will we be able to solve with him? I am quite confident that we have absolute astute leadership, our fabulous commerce minister, fabulous very capable foreign minister, very 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 capable prime minister. So I think we'll be able to do a deal, but it is a path. It's a path. Now, another path which we expect you to guide us is that most of the people want to make big money in stock market. Now, for a naive investor or for a businessman who's focusing on his activities, how does he create wealth? What is your advice how they should go forward? Because everybody, otherwise, youngsters get into F&O, and that options is very clear that there is no future in the options. But still, like 9 out of 10, Nilesh Bhai was mentioning, people lose money. So what's your guidance to them? अखिलेश भाई, ये जो गेम है ना, एक्चुअली मोर देन नंबर, ये ग्रीड एंड फियर का गेम है, राइट? तो आदमी क्यों ऑप्शन कर रहा है? बिकॉज योर ग्रीड हैज ओवरटेकन योर फियर एंड यू वांट टू बिकम रिच क्विकली, राइट? दैट इज व्हाई इवन एंड आई से पीपल हु आर डूइंग इट फॉर लिविंग एंड दे आर रियल प्रोफेशनल्स, दे मस्ट डू इट. If you are real professional, then it's a good way. You can make a lot of cash flow because 10 लोग तो कमाते हैं 100 में, राइट? बट अगर आप हियर से में कर रहे हो ना ये काम, कि कोई टिप दे देगा, मैं दिन में आधी घंटा जाके कोई स्क्रीन देख लूँगा और मेरा कोई स्किल नहीं है और मैं कोई भी कॉल और पुट भेज दूँ और मेरा पैसा बन जाएगा, तो वैसा रियल लाइफ में होता नहीं है. तो मेरी सलाह यही रहेगी अखिलेश भाई, अगर आप खुद कर सकते हो ये तो खुद करो. There is nothing like it. And there are lot of youngsters who are sitting here. My message to them that if you have half the interest
in investing or in the stock market world, please go full hog. There is no profession like this in the world. I repeat it, there is no profession like this in the world. This is true business of businesses. You can change your business anytime you want. आज स्टील में तेजी लग रही है, आई कैन बी इन्वेस्टेड इन स्टील इंडस्ट्री. कल फार्मा में लगेगी, मैं फार्मा में चले जाऊंगा. परसों टेक्नोलॉजी में लगेगी, मैं टेक्नोलॉजी में चला जाऊंगा. राइट? तो दिस इज ट्रू बिजनेस ऑफ बिजनेसेस. और यही एक ऐसी जगह है जहां कभी आपको 1 रुपए की चीज 10 पैसे में मिल सकती है और 5 साल के अंदर ये 1 रुपए की चीज 5 रुपए में बिक सकती है. दुनिया में और कहीं पे ये नहीं होता है कि आपको 1 रुपए की चीज 10 पैसे 4 आने में मिल जाए या 1 रुपए की चीज 3-4 रुपए में बिक जाए. सो द पीपल हु आर इंटरेस्टेड, they should definitely pursue this as your career. People who want to do it full time, they should do individual investing, because it may sound very complicated, but it is not that complicated. The rules are very simple, that you have to look for proper risk reward. You have to become greedy when other people are fearful. You have to be fearful when other people are extremely greedy. There are those 15 financial ratios which you need to look for. That, and there's broad understanding of the market and the business. If you have that, आपके इंदौर में ही एक बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर है, मैं 20 साल से जानता हूँ उनको, सुनील भाई. हम लोग कई ज़माने से कभी वो टाइटन डिस्कस किया करते थे. आज भी सुबह उनसे मुलाकात हो गई थी. Now he is not an astute analyst, right? But he has a broad sense of investing. Right? So if you have broad sense of investing, then you should do it yourself. If you don't have that, then you should pick up maybe 2 or 3 people you trust. Don't invest with 20 mutual funds or 20 AIFs or 20 PMSs in the name of diversifying. Because उससे better है फिर आप भी शेयर ही खरीद लो. Right? तो 2-3 लोगों को जिसके ऊपर आपको फेथ बैठता है ना, उसको आप पैसा दे दो. और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे बोलने से एक काम कीजिए. आप सपोजिंग आज आपने 1 करोड़ डाला, राइट, स्टॉक मार्केट में, और 1 करोड़ को आप बोलो कि मैं मार्केट में जो 25 साल का एवरेज रहा है 15% का रिटर्न, तो मैं 15% ही बनाऊंगा अगले 25 साल. तो 1 करोड़ का पहले साल में 1 करोड़ 15 लाख होगा. और रिलीजियसली अखिलेश भाई, जितना भी आप पैसा बनाते हो और भी कोई दूसरे सोर्सेज से कम 10% इंक्रीमेंटल अपना कॉर्पस बढ़ाते रहो इन द स्टॉक मार्केट. राइट? तो 1 करोड़ का 1 करोड़ 15 लाख आपका हो गया, 10 लाख आपने ऐड किया, तो 1 करोड़ 25 लाख आपका स्टार्टिंग कैपिटल हो गया. और उसके ऊपर आपने 15% कमाया, तो सेकेंड ईयर में 1 करोड़ 40 लाख हो गया. 1 करोड़ 40 लाख में आपने डिसिप्लिन के साथ 10 लाख और ऐड किया, तो 150 हो गया. मैं बोलता हूं अखिलेश भाई, माइंड माई वर्ड, कैलकुलेटर में नहीं आएगा इतना पैसा हो जाएगा. बट यू हैव टू डू इट विद डिसिप्लिन. आपने डिसिप्लिन की बात करी, इसके पहले आपने डाइवर्सिफिकेशन की बात करी. तो आजकल जो फंड मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट चलते हैं कि भाई आप रीट में पैसा लगाइए, आप गोल्ड में लगाइए, आप रियल एस्टेट में लगाइए, तो व्हाट इज योर व्यू ऑन डाइवर्सिफिकेशन? Clearly, asset allocation should be done, but it is only mad people like us who are 100% invested into equities all the time because of our passion and love for this subject, and maybe you can say because of the confidence which we have had in our own self for 30 years. But if you are making a portfolio and if you have diversification, see, इसमें क्या है अखिलेश भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है इस गेम में, आपका इमोशनल क्वोशेंट उस चीज को गवाही देना चाहिए. जैसे मैंने बोला कि मैंने मान लो 30% कैश क्रिएट कर दिया होता 4 साल पहले क्योंकि ओवर वैल्यूएशन था, तो मेरा हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता. किसी ने 30% कैश क्रिएट करके ही हैज सीन थ्रू दिस होल थिंग. इमोशनली आप किस चीज को कोप अप कर सकते हो, वही चीज आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए. तो मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है अभी सपोजिंग मेरा भी पोर्टफोलियो डाउन है लास्ट 2 महीने में, बट आई एम एबल टू कोप अप विद दिस इमोशनली. बट इफ यू आर नॉट अ पर्सन who can see 10%, 20%, 30% downfall in your wealth, then you have to make sure that
you do asset allocation properly, and you go by that rule. आपको 30 साल हो गए और मैं देखता हूँ कि पहले से पैशन आपका और बढ़ गया है, आपका हार्डवर्क बढ़ गया है. तो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? पैसा तो बहुत हो गया है, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट? अखिलेश भाई, ऑनेस्टली ना, पैसे का काम तो 10-15 साल पहले ही हो गया था. वो आई डोंट थिंक, और अपने तो मिडिल क्लास लोग हैं, तो अपना कोई नीड ऐसे है नहीं, ना घर की कोई नीड है, ना बच्चों की कोई नीड है, ना वाइफ की कोई, आप जानते हो पूरे परिवार को. सी, ये तो एक, when you are in pursuit of excellence, nothing comes in between. That pursuit of excellence is what keeps you driving. तो आप अगर 90% ठीक हो, तो 90 का 91 करने में बहुत जोर लगता है. आप अगर 95 पे आगे हो ना, तो 95 का, और मैं आपको ऑनेस्टली इतने भरे हुए क्राउड में बोल रहा हूँ, मेरे को 30 साल हो गया. अगर आप पूछोगे शेयर बाजार का कितना % मेरे को आता है, तो मैं बोलूँगा 10% आता है, 90% मुझे और सीखना बाकी है. सो दैट इज व्हाट कीप्स मी ड्राइविंग. और मेरा आइडियल कौन है, ये भी मैं बताता हूँ. अगेन, खुले हाल में, ऐसे मैं तो ये नहीं देख रहा हूँ कि इतने सारे लोग बैठ के सुन रहे हैं. मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मैं सिर्फ आपसे कमरे में अकेला बात कर रहा हूँ, तो ही मैं दिल की बातें कर पाऊंगा. तो मेरा आइडियल है MF हुसैन, राइट. इस लाइफ में मैं यही चाहता हूँ कि वो जैसे 91 ईयर्स तक के उसने पूरे पैशन के साथ वो काम किया, और जाने के पहले 1 हफ्ता पहले भी उसने एक पेंटिंग बनाई थी जो बहुत वैल्यूएबल हो गई, राइट. मैं तो ईश्वर को यही बोलूँगा, भगवान मेरे को ले जाने के पहले मैं तेरे को ये बोलूँगा, 1 हफ्ता और दे दे, एक आइडिया और जनरेट करता हूँ, उसके बाद तू ले जाना मुझे. दैट्स ग्रेट. मधु भैया, अगर आपने वो टेलीफोन नहीं सुना होता जो आपका दोस्त बात कर रहा था कि भाई टेलीफोन पे बात करिए और 5,000 बन गए, 2,000 बन गए, अगर वो नहीं किया होता तो क्या करते आप? अखिलेश भाई, मैं गेस भी नहीं करना चाहता हूँ कि मैं इन्वेस्टर नहीं होता तो क्या होता. इट्स लाइक ट्राइंग टू गेस कि अगर मछली पानी में नहीं रहती तो कहाँ रहती. क्या रहती, क्या बात है. वाह, दैट्स ग्रेट. मधु भाई, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन कि कैन यू शेयर बोथ मेजर सक्सेस एंड फेल्योर इन इन्वेस्टिंग एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम देम. सर, मैं बोला ना, ऑनेस्टली फेलियर के बारे में तो आई विल राइट अ बुक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. And we have committed all kinds of mistakes which are possible under universe. Buying the wrong promoter, buying the wrong company, buying it at the wrong price, buying the wrong industry, buying it in momentum. We have committed all kinds of mistakes. And there are times where we're still committing those mistakes. The propensity of those mistakes have gone down, and we are only committing mistakes which we can afford, right? We are not committing mistakes which we can't afford. So there are lots of mistakes which are being done. As I said, I will write a book someday on the mistakes. And mistakes and learning. Second thing, सक्सेस का सिर्फ एक ही गिला सिकवा है कि हमने जो रियल में आइडेंटिफाई किया ना, उसको पूरी तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाए. मे बी 20-25 साल पहले उतना विजडम नहीं था, उतना कॉम्प्रिहेंशन नहीं था, इतनी समझ भी नहीं थी कि ये इंडिया भी इतना प्रोग्रेस करेगा, मार्केट भी इतना प्रोग्रेस करेगा. लोग बोलते थे, बट बिकॉज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं था, राइट. तो वो जो कैपिटलाइज नहीं कर पाए अपनी खुद की समझ का, वही रिग्रेट है. एप्पल में मैंने पैसा नहीं कमाया, इसका मुझे 0 रिग्रेट है, क्योंकि मेरे कॉम्प्रिहेंशन में नहीं था. डीवीज में मैंने पैसा नहीं कमाया, मेरे खुद के आइडेंटिफाई करने के बाद जितना कमाना था उतना नहीं कमा पाए, उसका डेफिनेट रिग्रेट है. इसका मतलब कन्विक्शन शुड बी देयर, वट एवर यू बाइंग एंड थिंग्स आर गोइंग राइट. अशोक भाई, दिस इज अ मार्केट वेर इन योर पेशेंस विल बी टेस्टेड बट योर कन्विक्शन विल बी रिवार्डेड. ये पूरा गेम ही पेशेंस और कन्विक्शन का है. मधु भैया, आपसे बात करते रहो तो ऐसा लगता है कि कोई सिनेमा की स्टोरी या कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं. इतना इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन होता है आपके साथ हमेशा, पर समय की सीमा है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. रागिनी. अखिलेश भाई, मैं एक बात बोलना चाहूँगा. इंदौर आया हूँ यहाँ पे, दैट आई
love to share my knowledge and perspective with younger generation. So it's an open thing. If your organization can shortlist maybe the top 3 most aspiring young investor of Indore, I will be personally happy to contribute to their journey.